There's many think they're called, but all the Lord calls, those who He foreknew, He called. All who He called, He justified. All who He justified, He has glorified already. The thing is settled. बहुत से सोचते हैं कि वो बुलाए हुए हैं, लेकिन अब उन सब को खुदावंद बुलाता है जिनको उसने पहले से जाना। उसने उनको बुलाया, जितनों को उसने बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। ये पहले से मुकर्रर था। And then when you take a person that doesn't believe that the Holy Ghost is for the day, see what they're doing? They're denying the token, which is a very symbol of you being connected with your sacrifice. Hallelujah. और तब जब आप एक शख्स को लेते हैं जो ये ईमान नहीं रखता कि रुलकुस आज के लिए है, देखें ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। ये उस निशान को रद्द कर रहे हैं जो कि आपके लिए इस बात का सबूत है कि आप अपनी कुर्बानी के साथ जुड़े हुए हैं। See what I mean? It's very simple if you just look at it in the way that God has got it wrote out. देखा मेरा क्या मतलब है? ये बहुत सादा है अगर आप इस पर निगाह करें, इसी तरह से जैसे खुदा ने अब इसे लिखा है। Now, the blood carried us, and we were shows the symbol of the Holy Spirit, that is the life. Now, the animal life could not come back in the human because it wouldn't match. The animal life has no soul in it. The human life has a soul. लहू ने हमें उठाया और हम रुलकुस के निशान को जाहिर करें जो कि जिंदगी है। अब जानवर की जिंदगी इंसान की जिंदगी पर वापस नहीं आ सकती क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। जानवर की जिंदगी में शऊर नहीं होता और इंसान की जिंदगी में रूह होता है। The animal doesn't know he's naked. He doesn't know right from wrong. He has a spirit but not a soul. Now remember, the soul is the nature of the spirit, of course. जानवर नहीं जानता कि वो नंगा है, वो गलत और सही को नहीं जानता। वो इसके पास एक जान है लेकिन शऊर नहीं। अब याद रखें, बेशक अब जो शऊर है वो रूह की फितरत है। Now watch. But then when the life of our sacrifice, Jesus Christ, when His blood was shed, He was God bottled up in one man. अब ध्यान दें, लेकिन जब हमारी कुर्बानी की जिंदगी यीशु मसीह, जब उसका खून बहा था, वो एक इंसान में समाया हुआ खुदा था। Now He come down from being Jehovah to identify Himself as a human being, to take upon Himself the form of man, to identify us with Him. अब वो यहोवा होकर नीचे आया कि खुद को इंसान की तरह पेश करे। उसने खुद इंसान का रूप धारा ताकि हमें अपने साथ शनाख्त करे। He was the Lamb of God, and on the inside of Him were the blood. Now I know somebody says He was the Jewish blood. You hear the Jews say that. He wasn't Jewish blood. And neither was He Gentile blood. He was the blood of God. वो खुदा का बरा था और उसके अंदर जो खून, अब मैं जानता हूं कि कोई कहता है कि वो यहूदी का खून था। आप यहूदी को ये कहते सुनते हैं, मगर वो यहूदी का खून नहीं था, ना ही गैर कौम का खून था, वो खुदा का खून था। He wasn't neither Jew nor Gentile. He was God. A virgin shall conceive. ना ही यहूदी का था, ना ही वो यहूदी, ना ही गैर कौम का था, वो खुदा का था। एक कंवारी हामला होगी। Now I know many of you people in the Protestants think that the egg was Mary's, and the hemoglobin, which comes to life, comes in the blood cell. अब मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग और प्रोटेस्टेंट सोचते हैं कि वो अंडा मरियम का था, और जो हेमोग्लोबिन आता है जिंदगी उस खून के सेल में आती है। Because a hen can lay an egg without being with the male bird, it won't hatch because it's not fertile. Life comes from the bloodstream, which comes from the male sex. क्योंकि मुर्गी बिना मुर्गे के अंडा दे सकती है, यह बच्चा नहीं देगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी खून के जरिए आती है जो कि नर की जिन से आता है। But in this case, there was no male sex. So the life in the blood, it had to come from
God alone, and He created a blood cell in the womb of Mary. God Himself, the Creator Himself, created a blood cell. मगर इस मामले में कोई नर नहीं था, इसलिए जिंदगी खून में है। इसे तो सिर्फ खुदा की तरफ से आना था, और उसने मरियम के रहम में खून के खिलिये तख्लीक किए। खुदा खुद खालिक ने खून का खिलिया तख्लीक किया। Now look, they say, well, it was the body. Mary had the egg. No, sir. She was not no egg. If it was an egg, you cannot get the sperm without a sensation. And if she had a sensation, what do you have God doing? He created both egg and blood. That's exactly what He was. अब देखें, वो कहते हैं, अच्छा वो बदन था, मरियम के पास अंडा था। नहीं जनाब, उसके पास नहीं था, कोई अंडा नहीं था। अगर ये एक अंडा था तो आप बगैर हिस्स के, जोश के इस तुखम को हासिल नहीं कर सकते। और अगर मरियम, उसके अंदर एक हिस्स या नुतफा था, तो आपके पास क्या है जो खुदा कर रहा है? उसने अंडा और खून दोनों को तख्लीक किया, जो कि बिल्कुल हकीकत है कि वो क्या था। We handle God, the Bible said. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. We handled Him with our hands. हमने खुदा को छुआ, बाइबल कहती है। 1 तिमोथियस 3:16, इसमें कलाम नहीं के दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, हमने उसे अपने हाथों से छुआ। That body was God. Certainly was. He was God all over in the form of a human being. कि उस जिस्म में खुदा था, वाकया ही ये खुदा ही था, वो एक इंसान की सूरत में खुदा ही था। Now, we notice in this that blood cell being broken, that released God. God was in Christ reconciling the world to Himself. अब हम इस पर तवज्जो देते हैं कि जब खून के खलिये तोड़े गए, जिसने खुदा को जाहिर किया, खुदा ने मसीह में होकर खुद दुनिया से मेल कर लिया था। For no other one could do it. Nothing else could be done. It taken that holy blood Himself. God had to come down and become man to suffer His own law. जहां कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, उसने ये पाक खून खुद लिया। खुदा नीचे आ गया और इंसान बना कि अपने ही कानून को झेले। If Jesus was just a prophet, a man separated from God, then God's unjust. अगर यीशु सिर्फ एक नबी था, तो ये एक इंसान खुदा से जुदा था, तो फिर खुदा बेइंसाफ है। If I could say, let Brother Grant die for some sin that Billy ought to die for, or something else, some penalty, that would be unjust. अगर मैं कहता हूं कि भाई ग्रांट को कुछ गुनाहों या कुछ सजा के लिए मरने दो, जो कि बिली को मरना चाहिए था, तो ये बेइंसाफी होगी। If I had my own boy to die for a penalty that I had pronounced, it still isn't just. There's only one justice I can do. That's take his place. If I want to save him. अगर मेरे अपने ही लड़के को एक सजा के लिए मरना था, जिसका ऐलान मैंने किया था, तो ये अब भी इंसाफ नहीं है। सिर्फ एक ही इंसाफ है जो मैं कर सकता हूं कि अगर मैं उसे बचाना चाहता हूं तो उसकी जगह ले लूं। And God had to become flesh in order to take the sinner's place. God manifested in the flesh. Nothing less than God Himself. और खुदा जिस्म बन गया ताकि गुनाहगारों की जगह ले ले। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, वो खुद खुदा के अलावा कुछ नहीं था। Now here He was, manifested in the flesh to take away the sins of the world, and He identified Himself in us that we might be identified in Him. See the purpose of it? वो यहाँ जिस्म में जाहिर हुआ ताकि दुनिया के गुनाहों को उठा ले, और उसने खुद अपने आप को हम में जाहिर किया ताकि हमारी पहचान उसमें हो, उसके मकसद को समझें। Now, we find out our identification with our sacrifice, the life of the sacrifice in us, which is the Holy Spirit. अब हम अपनी शनाख्त को अपनी कुर्बानी के साथ पाते हैं। कुर्बानी की जिंदगी हम में है, जो कि रूह कुद्स है। When that cell was broke, it released God. Released God that He had sanctified a people with His own blood and put God in the man again. God in you, eternal life. जब वो खुलिया टूटा था, ये खुदा जाहिर हुआ। उसने अपने ही खून से
लोगों को मुकद्दस किया और खुदा को इंसान में दोबारा रखा। खुदा आप में है, यानी हमेशा की जिंदगी। And any Greek scholar knows that word eternal life comes from the word zoe, which means God's own life. That's right. और जैसा कि कोई यूनानी आलम इस लफ्ज को जानता है, ना खत्म होने वाली जिंदगी, जो कि जोई लफ्ज से निकला है। जोई का मतलब है खुदा की अपनी जिंदगी। ये ठीक है। The only way that you ever can have life is only one form of eternal life, and that's God's own life in you. सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आपके पास जिंदगी हो सकती है। सिर्फ एक ही है जो हमेशा की जिंदगी है, और वो है खुद खुदा की जिंदगी जो आप में है। समझे? Then you have eternal life because He is the only eternal there is. And we are the attributes of His thoughts before there was even a foundation of the world or anything. फिर आप में हमेशा की जिंदगी है क्योंकि वही सिर्फ यहाँ अब्दी है, और हम उसकी सोच से मंसूब हैं, इससे पहले कि दुनिया को बनाया जाता या जो कुछ भी। All this is just His thinking, and we're the display of His thoughts of what it was. ये सब सिर्फ उसकी सोच है कि हम उसकी सोच का मजहर हैं कि वो क्या था। And He had to come down in order to take away sin. No one else could do it. There wasn't no one worthy to do it. No one could do it but Him, and He did it. और गुनाहों को उठाने के लिए उसे नीचे आना था, जो कोई और नहीं कर सकता था। वहां कोई लायक ना था जो इसे करता, कोई नहीं था जो इसे कर सकता, लेकिन वो, और उसने ऐसा किया। And then when that life was released from that body, man, which was the Son of God, His creative power made a building like any contractor built the building that he moved into himself. God did that. और फिर जब वो जिंदगी इंसानी बदन से निकली जो खुदा का बेटा था, उसने अपनी तख्लीकी कुव्वत से एक इमारत बनाई, किसी ठेकेदार की तरह इस इमारत को तमीर किया और खुद इसमें दाखिल हो गया। खुदा ने ऐसे किया। And then when that life was taken, the blood, the chemistry of it poured out upon the ground, just like just Abel's poured out upon the ground. और तब जब वो जिंदगी ले ली गई थी, खून के कीमियात जमीन पर बह गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाबल का खून जमीन में चला गया। But from that blood came the Holy Spirit of God, and that was sent to man on the day of Pentecost to be identified with the sacrifice that died for them. There's no other way in the world we can get it. A positive token. लेकिन इसके खून में से खुदा का पाक रूह बाहर आया, जो कि पेंतीकोस के दिन बनी नौ इंसान पर भेजा गया, कि उस कुर्बानी के साथ शनाख्त किया जाए जो उनके लिए मरा। दुनिया में कोई और तरीका नहीं जिससे हम उसे हासिल कर सकते, यानी एक मुस्बत निशान को। Look, if you were guilty of death and you know you was going to the electric chair, and remember to reject. देखें, अगर आप मौत के कसूरवार थे और आप जानते थे कि आप बरकरू कुर्सी पर जा रहे थे, याद रखें। Dallas, listen. To reject the blood of Jesus Christ, the token of His blood, if you see it and reject it, you're going to face the judgment with His blood on your hands. Amen. Sinner, church member, remember that. डिलास सुन, यीशु मसीह के खून को, उसके खून के निशान को रद्द करना, अगर आपने उसे देखा और उसे रद्द किया तो आप अदालत का सामना करने जा रहे हैं। उसका खून आपके हाथों पर है। ऐ गुनाहगारो, रुकने कलीसिया, इस बात को याद रखें। What if Lee Oswald would have been able, them few days, and that sweating before that Supreme Court that he had to face, and know from killing the president, there wouldn't even be one speck of mercy. How that man must have felt. क्या होता अगर ली ओसवाल्ड उन दिनों में इस काबिल होता, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का सामना करने से पहले पसीने में शराबूर हो रहा था, जिसका उसे सामना करना था, और सदर के कत्ल से वो जान गया था कि वहां कोई रियायत ना होगी, तो उस आदमी ने कैसा महसूस किया था। It must have been a terrific thing. He never got to face it because the other fellow shot him. But think of sitting there
before an angry Supreme Court with the blood of your fellow man on your hand, the President of the United States. ये बहुत भयानक बात होनी चाहिए थी। वो कभी उसका सामना ना करता क्योंकि दूसरे साथी ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन सोचें कि सुप्रीम कोर्ट के तैश के सामने बैठे हुए अपने साथी के खून के साथ, जो कि आपके हाथों पर हो, जो कि अमेरिका का सदर हो। That'll be a mild thing to you people who pass by the blood of Jesus Christ when you stand by the courts of God. तो ये हल्की बात होगी जब आप लोग यीशु मसीह के खून के पास से गुजर जाएं, तो आप खुदा की अदालत के सामने खड़े होंगे। Sweat it out when you know Oswald can get done no more and depart this life for him. But God departs you eternally from His presence. It'll be a terrific thing. जब आप ये बात जान जाते हैं तो आप पसीने पसीने होते हैं। ओसवाल्ड इससे बढ़कर कुछ ना कर सका कि अपनी जिंदगी छोड़ दे, फिर खुदा भी अपनी हजूरी से आपको हमेशा के लिए निकाल देता है। तो ये एक भयानक बात ना होगी? Notice, if you had to come to the courts of being guilty, you would seek the best lawyer you could find. Anybody would do it. गौर करें, अगर आपको अदालत में कसूरवार होकर आना पड़े तो आप सबसे अच्छा वकील ढूंढेंगे जो आप तलाश कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ही करेगा। And every man that's born in the world, I don't care how good a home he come out of, he's guilty of the blood of Jesus Christ until he accepts the pardon of it. और हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, मुझे परवाह नहीं कि वो कितने अच्छे घर से आया है, वो यीशु मसीह के खून का कसूरवार है जब तक वो उसकी माफी को कबूल ना कर ले। And the only way that you know the pardon is right when the token puts itself up on you and you have the token. और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जान लें कि माफी ठीक है, जब निशान खुद आपके ऊपर आ जाए और आपके पास निशान हो। Notice, you're guilty and you'd hunt the best attorney that you could find to plead your case. And if I was going to the judgment of God, I don't want no priest, I don't want no man, I want the best attorney I can find to plead my case. तवज्जो दीजिए, अगर आप गुनाहगार हैं और आप सबसे अच्छा वकील तलाश करेंगे ताकि आप अपना मुकदमा लड़ सकें, और अगर मैं खुदा की अदालत में जा रहा होता तो मैं कोई काहिन नहीं चाहता, मैं किसी इंसान को नहीं चाहता, मैं सबसे अच्छा वकील चाहता जो कि मैं तलाश कर सकता हूं कि मेरा मुकदमा लड़े। Let me say to you, my Christian friend, our attorney is also our judge. And our judge became our attorney. The case is settled when we receive his pardon. मेरे मसीही दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा वकील ही हमारा जज है और हमारा जज ही हमारा वकील बन गया। जब हमने माफी हासिल कर ली तो हमारा मामला तय हो गया। The judge himself came down and became the attorney. And the attorney and judge is the same person. जज खुद नीचे आकर वकील बन गया और वकील और जज एक ही शख्स है। God become man that he might justify man by his own death that he placed upon him. Hallelujah. That means praise our God. He deserves all praises. Our judge and our attorney is the same person. खुदा इंसान बन गया ताकि वो अपनी मौत से इंसान को छुड़ाए और उसने इसे अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारे खुदा की तारीफ हो जो कि सारी तारीफ के लायक है। हमारा जज और हमारा वकील एक ही शख्स है। The Holy Ghost is the token that we have been pardoned. The case is closed. रूल कुछ निशान है कि हम माफी पा चुके हैं और हमारा मामला खत्म हो गया है। That every man and woman that truly has received the baptism of the Holy Ghost, he's been tried, he's identified with his attorney, with his judge, with his sacrifice, and the token he holds in his possession shows that his trip is paid to glory. Amen. It's all over. हर एक मर्द और औरत जिसने हकीकी रूल कुछ का बपतिस्मा पा लिया है, वो परखा जा चुका है, वो अपने वकील के साथ और जज के साथ और कुर्बानी के साथ शनाख्त कर दिया गया है, और निशान जो उसने थामा है इसकी मलकियत को जाहिर करता है कि उसके सफर की कीमत जलाल के लिए अदा हो चुकी है। आमीन। ये पूरा हो गया। He holds that token. It's his.
The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the resurrection of Jesus. Amen. You believe it? Amen. That's your identification. You're holding the token. वो इस निशान को थामे हुए हैं। ये इसका है, रूल कुछ का बपतिस्मा, जो कि यस्सु के जी उठने की गवाही है। आमीन। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? आपकी पहचान है कि आप निशान को थामे हुए हैं। Now, if you haven't got that token, you'll not be coming in. You must have the token. That's a required prize. When I see the blood is a token. When I see the blood, I'll pass over you. अब अगर आपके पास निशान नहीं है तो आप अंदर नहीं आएंगे। आपके पास निशान जरूर होना चाहिए, जो कि तकाजे की कीमत है। जब मैं खून को देखता हूँ, क्योंकि खून निशान है, जब मैं खून को देखता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। You must have the token. If you don't, well, you won't go. You've got to have the token. आपके पास निशान जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं तो आप नहीं जाएंगे। आपके पास निशान होना ही चाहिए। If the token was not displayed, the token wasn't showed down there, even the covenant wasn't in effect. You say, now, Brother Branham, now wait just a minute. That's exactly right. अगर वहां निशान जाहिर ना किया गया होता और निशान ना दिखाया गया होता तो अहद भी बेअसर होता। आप कहते हैं ठीक है। अब भाई ब्रैनम, अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए। ये बिल्कुल ठीक है। The token was above the covenant. For Israel had a covenant to be circumcised. And any Jew could go out and show any person, I can prove to you I am circumcised. I am a Jew. I'm circumcised according to Jehovah's command. But yet, that didn't expel him if the token wasn't there also. Amen. He must display the token. You get it? निशान अहद से बढ़कर है। इसराइल के पास खतने का अहद था और कोई भी यहूदी बाहर जाता और किसी भी शख्स को दिखा सकता था। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मैं खतनाशुदा हूँ। मैं एक यहूदी हूँ। मैंने यहोवा के हुक्म के मुताबिक खतना करवाया है, लेकिन वो अभी तक इससे निकाला ना गया था, इसलिए कि निशान वहां ना था। इसे निशान को जरूर ही जाहिर करना चाहिए। क्या आपने इसे हासिल किया? The token's got to be there anyhow. And if you are in the covenant, if any Jew would say, I ain't put no blood on my door, I can prove that I'm a covenant Jew. The death angel got him. किसी भी तरह निशान को वहां होना चाहिए था। अगर आप अहद में हैं, अगर कोई यहूदी कहता है मैंने अपने दरवाजे पर खून नहीं लगाया है, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं एक वादाशुदा यहूदी हूं। मौत का फरिश्ता उसको मार डालता। No matter how loyal he was, how much church member he was, how much tithes he paid, how he said he believed Jehovah, Jehovah required that token. And he does it today too. It's got to be. Must be. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना खैर ख्वाह था, वो कलीसिया का कितना अच्छा मेंबर था, उसने कितनी देयकी दी, उसने कितना कहा कि वो यहोवा पर ईमान रखता है। ये यहोवा की मांग थी, निशान, और वो आज भी यही करता है। इसे होना ही है, इसे जरूर होना चाहिए। For there's not another way under heaven, not another name given anyway. No matter how good, how loyal, that token's got to be there and displayed. क्योंकि आसमान के नीचे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अच्छे कितने खैर ख्वाह, बल्कि इस निशान को वहां होना ही चाहिए और निशान जाहिर हो। The blood, you say, well, I killed the lamb and I put it in a jar, I set it back here. That's not what he said. It must be on the lintel and on the door place. It's got to be displayed. आप कहते हैं खून, ठीक है, मैंने बड़ा ज़बह किया और उसे बर्तन में रखा, मैंने उसे वहां पीछे रख दिया है। उसने ये नहीं कहा, उसे तो चौखट और दरवाजे की जगह होना चाहिए, इसे लगा दिया गया हो। And your life has got to display the token is in you. Oh, you Pentecostals, what's wrong with you? Bobbed hair, painted faces, man, dirty jokes and things. Where's that display of the blood of my Lord Jesus Christ as a token of the Holy Ghost? और आपकी जिंदगी उसे जाहिर करे कि निशान आपके अंदर है,
ओ तुम पेंतिकास्टलो, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? कटे हुए बाल, रंगे हुए चेहरे, इंसानी गंदे मजाक और दूसरी चीजें कहां से मेरे यीशु मसीह के खून को जाहिर किया है, जो कि रूल कुछ का निशान है? You having a form of godliness and calling witchcraft and everything else, the works of God witchcraft? How you display a token? तुम दीनदारी की वजह तो रखते हो और जादूगरी करते हो, और इसके अलावा सब कुछ। क्या खुदा का काम जादूगरी है? आप कैसे एक निशान को जाहिर करते हैं? Let's say I'm Penny, I don't care what you are. I'm Baptist, I'm pray, I don't care what you are. That token's got to be there. God requires it. Amen. Nothing else but that. तुम कहते हो मैं पैंती, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या हैं। मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या हैं। इस निशान को वहां होना चाहिए। ये खुदा की मांग है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ यही। You say, well, I've got a doctorate, I don't care how many degrees you got. God requires that token and that only. It's a sign that your way is paid. आप कहते हैं ठीक है, मेरे पास डॉक्टर की एक डिग्री है, मुझे परवाह नहीं कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। खुदा की मांग सिर्फ निशान है और सिर्फ वही है। ये इस बात का निशान है कि आपके सफर की कीमत अदा हो चुकी है। He ain't gonna take your credentials for something else. He's got to have that token. वो आपकी इसनाद लेने नहीं जा रहा या कुछ और, इसे तो सिर्फ निशान चाहिए। The bus driver say, here, wait a minute, that ain't my token. The airplane man say, we go out there now, a ticket is a token. बस वाला कहता है, यहाँ 1 मिनट इंतजार करें, ये मेरा निशान नहीं है। हवाई जहाज का पायलट कहता है, ठीक है, अब आप वहां बाहर निकल जाइए, एक टिकट ही एक निशान है। You go out there and tell the pilot, here, I want to get on your plane, how much is it? Go in and get your token. Oh, I'll pay you, I can't take it. You won't get on my plane until you go pay the price and get the token. I'm looking for the token. Amen. आप वहां बाहर जाएं और बताएं, यहां मैं आपके जहाज पर चढ़ना चाहता हूं, इसका कितना किराया है? अंदर जाएं और अपना निशान लें और मैं आपको कीमत दूंगा। मैं इसे नहीं ले सकता, आप मेरे जहाज पर नहीं बैठेंगे जब तक आप जाकर कीमत देकर निशान हासिल न कर लें। मैं निशान के लिए देख रहा हूं। You say, well, I went to school, I done this, I don't care what you done. You got to have the token or you don't get on. That's right. Amen and amen. Can't you see? आप कहते हैं ठीक है, मैं स्कूल गया, मैंने ये खत्म किया, मैंने ये किया, मुझे परवाह नहीं आपने क्या किया। आपके पास निशान होना चाहिए, वरना आप ऊपर नहीं आ सकते। आमीन सुम आमीन। क्या आप इसे नहीं देख सकते? God requires that token. When I see the blood and only will I pass over you, and I see the token. खुदा निशान मांगता है, जब मैं लहू को देखता हूँ तब ही सिर्फ मैं आपको छोड़ जाऊंगा, यानी जब मैं निशान को देखता हूँ। It was not displayed, the covenant wasn't even in effect. A Jew could absolutely say and prove himself to be a circumcised Jew. You could take the brethren out and say, look here, I'm circumcised. That didn't mean one thing. निशान जाहिर ना किया जाता तो अहद भी बेअसर होता। एक यहूदी पूरी तरह से यह कह सकता था, खुद को एक खतनाशुदा यहूदी साबित कर सकता था। वो भाइयों को अलग ले जाता और कहता, यहाँ देखें, मेरा खतना हुआ है। इस बात का कोई मतलब नहीं। You say, I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal, I'm this, I'm that. That don't mean one thing. आप कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस बात का कोई मतलब नहीं। You've got to have the token. And when the token comes, it testifies of Christ. He said it would. And Christ is the Word. आपके पास निशान होना चाहिए, और जब निशान आता है, ये मसीह की गवाही देता है, और उसने कहा ये देगा, और मसीह कलाम है। And how can you deny that the Bible's true part of it and still say you have the token when the token is the testimony of Jesus Christ? That's what I wonder. उसका हिस्सा होते हुए आप कैसे सच्ची बाइबल का इनकार कर सकते हैं? फिर भी आप कहते हैं कि हमारे पास निशान है, जबकि निशान यीशु मसीह की गवाही है। समझे, मैं इस बात से हैरान हूं। Or say, I believe the days of miracle. Look out, there's no token there. The token punctuates every word with an amen. Everything, because it's God itself. See? वो कहते हैं मैं मौजज़ात के दिनों पर ईमान नहीं रखता। वो
वो देखें कोई निशान नहीं है, जबकि निशान कलाम के हर लफ्ज पर जोर देकर आमीन कहता है। यही सबब है कि ये खुद खुदा है। समझे? All right. But if the token was not there, the covenant was not in effect. It was annulled. Same now. ठीक है, अगर वहां निशान मौजूद ना होता तो अहद भी बेअसर होता। ये मनसूख था, जैसे कि अब। No matter how much you say, I believe every word in the Bible. You say, Brother Branham, I can quote you half of that Bible, all the Bible by heart. I believe every bit of it. That's good. Satan does too. It takes the token. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कहा और आप कितना कहोगे। मैं बाइबल के हर लफ्ज पर ईमान रखता हूं। कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं आपको आधी बाइबल याद की हुई सुना सकता हूं, सारी बाइबल जुबानी सुना सकता हूं। मैं इसके हर हिस्से पर ईमान रखता हूं। ये अच्छा है, शैतान भी ऐसा ही करता है। जी हाँ, लेकिन खुदा को निशान चाहिए।